2-3 साल वो आपको انگیج رکھیں گے. اچھا ٹھیک ہے, اتنے میں وہ تیاری کریں گے کہ بجٹ کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اسلحے کی خریداری پہ صرف کریں گے. اور اس کے بعد دیکھیں جو لوگ انڈیا پاکستان ٹریک 2 مذاکرات میں شریک ہوتے رہے ہیں, سیمینارز میں شریک ہوتے رہے ہیں, جن کی انڈین جرنلسٹوں سے ملاقاتیں ہیں, انڈین پولیٹیشین سے ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں مری مکھی وہ دینے کو تیار نہیں. تو ہم کس لیے پھر آمادہ ہو گئے؟ انہوں نے تو انگیج کیا, ہم اس لیے آمادہ ہو گئے نا کہ ہم تو ہر وقت آمادہ ہے نا جی. ویلکم ٹو آل انڈیا ٹائمز. آل انڈیا ٹائمز کی نئی ویڈیو میں آپ سبھی کا سواگت ہے. پاکستان کی ایک ایسی ڈیبیٹ آج آپ کے سامنے ہے جس میں پاکستان یہ ڈسکس کر رہا ہے کہ ہندوستان پاکستان سے امن, چین اور شانتی بڑھانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے, اور یہ جو ساری کوششیں ہو رہی ہیں یہ بھارت کی طرف سے ہو رہی ہیں. حالانکہ یہ ساری خبر انٹرنل پالیسیز کے علاوہ کوئی اور کنفرم نہیں کر سکتا. جو ہماری ایکسٹرنل منسٹری ہے, جو فارن منسٹری ہے, وہی بتا سکتی ہے کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ پاکستانی ٹیکسٹائل انڈسٹری انڈیا سے بہت زیادہ بہتر ہے. انڈین سولجرز خودکشی کرتے ہیں بجائے چائنا کے سولجرز اتنے زیادہ پاورفل ہیں کہ انہوں نے ہماری زمین گھیر رکھی, اور ایسا بہت سا وہ لوگ جھوٹ کہہ رہے ہیں. ان کی ڈیبیٹ کافی انٹرسٹنگ ہے, اور تو اور اینڈ میں یہ لوگ اپنے 9000 مسلمانوں کی طاقت بتانا چاہ رہے ہیں. تو وہ ویڈیو پورا دیکھیے. اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے, لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جے ہند, جے بھارت دوستوں. ہارون صاحب کہ جو تردید پہ تردید آ رہی ہے قریشی صاحب کی طرف سے کہ کوئی قسم کے پاک انڈیا مذاکرات نہیں ہو رہے, اگر مذاکرات ہو رہے ہیں تو پاکستان حاصل کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس سے کیا حاصل ہوگا؟ میں اب اس پہ کیا کہوں, یعنی مذاکرات میں تو کسی کو شبہ ہی نہیں ہے کہ ہو رہے ہیں. متحدہ عرب امارات والوں نے اس کا اعلان کر دیا. او بھائی اپنی قوم کو اعتماد میں لو, اگر بات چیت کر رہے ہو تو قوم کو اعتماد میں لو. دسمبر میں انڈیا سے انڈیکیشن آئی تھی, دسمبر میں 4 مہینے پہلے, کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں. انڈیا کیوں بات چیت کرنا چاہتا ہے؟ صحیح, ویری سمپل. سکھ ان کے سر پہ چڑھے ہوئے تھے, کسان چڑھے ہوئے تھے. ابھی کرونا سے صورتحال جو ہے وہ خراب ہونے شروع ہو گئی تھی, اور اب تو تباہ کن ہے. اب تو سارا انڈیا ایک شمشان گھاٹ ہے. کل 3 لاکھ, آج 3,40,000 تک پہنچا ہوا. کمپ کے میلے کے بعد اور بنگال کے الیکشن کمپین کے بعد یہ 10 لاکھ تک جا سکتی ہے. ہم نہیں چاہتے جائے, کوئی یہ تمنا تو نہیں کرنی چاہیے نا کہ بھائی لوگ مریں, اور انسان ہیں آخر. اور یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب یہ ہے, اچھا سب سے اہم فیکٹر یہ ہے کہ چین چڑھ آیا, اور چینیوں سے ان کی اپنی شرائط پہ انہوں نے صلح کر لی, ان کے خلاف بات تک نہیں کی. ٹھیک ہے, اور علاقہ بھی انہیں دے دیا, ہائٹس پہ بھی وہ قابض ہو گئے, تعمیرات بھی انہوں نے برقرار رکھی. وہ علاقہ جو انڈیا کہتا ہے ہمارا, وہاں ان کی تعمیرات ہیں, ان کے ٹینک کھڑے ہیں, اور فوج ان کی الرٹنس پہ ہے. 2 لاکھ فوج وہ تیار کر چکے ہیں. اب ان کے پاس کیا آپشن تھا اس کے سوا کہ دنیا کے پاس جاتے اور لابنگ کرتے اور یہ کہتے کہ بھائی یہ پاکستانیوں کو تو کم از کم کہو کہ بھائی ہمیں اس وقت ان کو انگیج کریں. انگیج کیا انہوں نے ہمیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں اس دنیا میں ہوں گا یا نہیں ہوگا, اللہ بہتر زندگی, کسی کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں. 2-3 سال وہ آپ کو انگیج رکھیں گے. اچھا ٹھیک ہے, اتنے میں وہ تیاری کریں گے کہ بجٹ کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اسلحے کی خریداری پہ صرف کریں گے. اور اس کے بعد دیکھیں جو لوگ انڈیا پاکستان ٹریک 2 مذاکرات میں شریک ہوتے رہے ہیں, سیمینارز میں شریک ہوتے رہے ہیں, جن کی انڈین جرنلسٹوں سے ملاقاتیں ہیں, انڈین پولیٹیشین سے ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں مری مکھی وہ دینے کو تیار نہیں. تو ہم کس لیے پھر آمادہ ہو گئے؟ انہوں نے تو انگیج کیا, ہم اس لیے آمادہ ہو گئے نا کہ ہم تو ہر وقت آمادہ ہے نا جی. ہم جو امریکہ نے کہہ دیا, روس نے کہہ دیا, چین بھی ویسے کہہ رہا ہے, تو اپنا اور ملکوں نے ہم سے کہا, تو ہم ان سے کہیں کہ جناب والا 370 تو امپلیمنٹ کریں نا دوبارہ, جو ان کا اصل موقف ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پرسوں کا واقعہ ہے, میں اس ہوٹل میں ٹھہرتا رہا ہوں, ایک بار نہیں بار بار میں اس ہوٹل میں ٹھہرا ہوں. سوائے کور کمانڈر کوئٹہ کے کسی جگہ کی سیکورٹی اتنی سخت نہیں ہے جتنی اس ہوٹل کی ہے. 10 منٹ ہمیں لگ جاتے تھے وہاں جانے میں. ایک دفعہ جب میں ایک سیمینار کے لیے گیا تھا اور وہاں ٹھہرا ہوا تھا, تو میں نے انکار کر دیا وہاں ٹھہرنے سے. میں نے کہا 10 منٹ لگتے ہیں, فیکس کا یہاں کوئی اچھا بندوبست نہیں ہے,
फैक्स पे भेजते थे उस वक्त, ये मोबाइल पे तो 2-3 साल पहले ये व्हाट्सएप का इतना रवाज नहीं हुआ था, तस्वीरें बनाने का, हमें आती भी नहीं थी बनानी। तो वहाँ पे आदमी कैसे दाखिल हो गया? और उस वक्त जब चीनी सफीर को आना था, यानी अफ़गानिस्तान से टेररिस्ट आते रहें और चीनी सफीर को कत्ल करने का मंसूबा बनाएं और जनाब और जगह पे दहशत गर्दी करते रहें, और आप उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं। और शाह महमूद साहब क्या समझते हैं? मुल्लू हैं, आमक है सारी कौम, और कश्मीरियों को आपने उनके हाल पर छोड़ दिया। इसका सौदा तो और नहीं कर लिया कश्मीरियों इन्होंने? को उनसे एतमाद में लेके करें ना। देखिए बातचीत बाद औक़ात करनी पड़ती, मैदान जंग में बातचीत होती है। अपना सलाउद्दीन अय्यूबी भी बात कर रहा था, टीपू भी बात कर रहा था, कायद-ए-आज़म भी बदतरीन हालात में बात कर रहे थे। बातचीत में कोई हर्ज नहीं है। असरात क्या है कश्मीर पे? आप उस पे ये अपनी शरात मनवाएं जो ज़रूरी है। तालिबान से कहा अमरीकियों ने कि वो बंद कर दें कार्रवाइयाँ, उन्होंने कहा कार्रवाई तो नहीं बंद कर सकते, इसलिए कि उन्हें ये पता था हमने कार्रवाई बंद कर दी तो उसका तो फ़ायदा उठाएगा अशरफ गनी और इक़्तिदार में ज़्यादा हिस्सा मांगेगा। अव्वल तो हम देने नहीं चाहते, देंगे तो बराए नाम हिस्सा देंगे, इसलिए कि मेजॉरिटी की तो सपोर्ट उन्हें हासिल है। 20 साल जंग उन्होंने लड़ी और जंग हार चुके अमरीकी। इसके बाद क्या है? हमें वो हर तरह से दबाने की कोशिश करते हैं, उसकी वजह है रूसियों का इंटरेस्ट तो और है या चीनियों का तो ये है कि भाई ठीक है, मतलब हमारे काबू में ही हैं, लेकिन ये कि क्या कर लेंगे ये, मतलब जब हम चाहेंगे तो थोड़ा सा और दबा लेंगे इनको। चीनियों को तो उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, और चीनी ये अगर $10 बिलियन का इजाफा करेंगे, वो $20 बिलियन का इजाफा कर देंगे, उनको क्या। और वो एक टफ कौम है, वो इंडियंस की तरह तो नहीं है, इनके इंडियन सिपाही तो खुदकुशी करते हैं, चीन में तो कोई खुदकुशी नहीं करता। अब हारून साहब कश्मीर को एतमाद में लिए बगैर अगर ये हो रहा है तो मैं आपको पहले पूरा सिनेरियो बता दूं ना। अच्छा, और चीनी जो है वो उनका एक इंटरेस्ट वही भी है जो रूस का है, अफगानिस्तान में अमन हो जाए और अमेरिका के इन्फ्लुएंस यहाँ वक्त गुजरने के साथ कम हो जाए। और अमेरिका का मसला ये है कि इंडिया इस इलाके का थानेदार हो, उनका भी दबाव है। और अमेरिका के सामने तो हमारे लोग ऐसे आजिज़ हैं ना कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। माई बाप है इनका अमेरिका। वो लाहौर के एक सूफी कहते हैं, दरवेश हैं, वो कहते हैं खुदा पे हम ईमान रखते हैं, भरोसा नहीं रखते। तवक्कल चाहिए होता है। कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान इसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा कमज़ोर था, मगर उनके लहजे की गन घरज में कोई तब्दीली नहीं आई थी। लियाकत अली ख़ान को अमरीकियों ने मार तो डाला, मरना तो उसी वक्त था। लियाकत अली ख़ान ने ट्रैफिक के हादसे में जहाँ बाग हो जाते, अगर शहीद ना होते, वो मौत का वक्त मुकर्रर। उन्होंने अमरीकियों की बात नहीं मानी कि ईरान में मुदाखलत की जाए और मुसद्दक को हटाने में मदद की जाए। ठीक है, ज़िया-उल हक ने उनकी बात नहीं मानी कि भाई उनकी मर्ज़ी की हुकूमत अमेरिका में, उन्होंने मार डाला। फिर क्या हुआ? मार डाला तो फिर अमेरिका ने जीत लिया, फिर ले लिया अफगानिस्तान, फ़ौज भेज के भी नहीं ले सके। ताकत एक नफ्सियाती चीज़ है, ये कमज़ोर पड़ गए हैं, झुक गए हैं, और न कश्मीरी लीडरशिप को एतमाद में लिया, न कौम को एतमाद में लिया। और हाल तो आली जनाब आपका, ये कपास का सौदा तो आप कर नहीं सकते। एक दिन से फैसला किया तो दूसरे दिन ख़त्म। और दलीलें क्या दे रहे हैं? वो एक पूरी फौज लगी हुई रायामा को अंबार करने में। वो समझते हैं कौम क्या बेवकूफ़ कौम है, इसको हम समझा लेंगे कि जी 95% यूरोप में इनसाइड ट्रेड है, यूरोपीय मुल्कों में कहाँ ट्रेड होगी, हमारा बड़ा फ़ायदा होगा। और हमसे तो वो कुछ मंगवाएंगे ही नहीं। मैं एक सिख को जानता हूँ जिसने कहा पाकिस्तान के, आपको पता ना, होम टेक्सटाइल बहुत अच्छी है, कपड़े बहुत अच्छे हैं, शलवार कमीज बहुत अच्छी है, बिस्तर की चादरें ये वो इंडिया से बहुत सुपीरियर है। तो उसने कहा, मेरे दोस्त है जिससे उसने कहा कि तुम जितना माल भेज सकते हो भेज दो, जितने कंटेनर चाहे। उसने कहा कितने? उसने कहा 100, 200, 400, जितने तुम कर सको, 2000। इसलिए कि प्राइस का बड़ा फर्क था, क्वालिटी का बड़ा फर्क था। वहाँ एक बड़ी मिडिल क्लास इमर्ज हो गई है और वो अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, और वो अच्छा कपड़ा तो पाकिस्तान में बनता है, मौसम तो एक ही जैसा है ज़्यादातर इंडिया का जो इलाका है। मगर यहाँ पे कपड़ा ज़्यादा अच्छा है। एक थान भी नहीं मंगवाने दिया उसको। ट्रेड जो इंडिया के साथ होती है तो उसमें तो माल हम खरीदते हैं, वो तो नहीं खरीदते। तो इसमें हमारा फ़ायदा क्या होगा फिर? हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारा फ़ायदा इससे, ये जो हिस्सा से कमतरी है इसका क्या इलाज है? ताकत तो एक नफ्सियाती चीज़ है। वो कहने लगे रोमियों की फ़ौज थी 90,000, मुसलमानों की थी 9,000। 9 और 90,000 का क्या मुकाबला?
और देखो ऑर्गेनाइज्ड वॉर हार्डन्ड आर्मी थी रूमियों की भी, ईरान को वो शिकस्त दे चुके थे। तो किसी ने कहा जनाब खालिद बिन वलीद से कि रूमी कितने ज़्यादा हैं, हम कितने थोड़े हैं। उन्होंने कहा चुप रह, अगर मेरे घोड़े के सुम खराब न होते तो ये चाहे से दुगनी फौज लेते। ये एक मेथड होता है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का, तकब्बर नहीं था। और मैदान जंग में फ़ख्र जायज़ है, याद रखें। और जब वो आए उन्होंने कहा कि भाई आप पैसे वैसे ले लें, ये करें जाएं वो करें। उनके पैसे तो हम वैसे ही ले लेंगे जब हम फतह ही कर लेंगे। इतना एतमाद, ठीक है ना। अच्छा नहीं, एतमाद क्यों था? एक फ़िक्र हर ख़त में एक फ़िक्र लिखते थे वो, जिससे मुज़ाकरात करते थे। तुम्हारे सामने वो लोग आ रहे हैं जो मौत को ज़िंदगी से ज़्यादा अजीज़ रखते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया था वहन की बीमारी हो जाएगी, मुसलमान समंदर की झाग जितने होंगे बेशुमार, दुनिया उन पर इस तरह टूट पड़ेगी जैसे भूखे दस्तरखान पर टूटते हैं। तो वो असहाब रसूल ने पूछा या रसूलल्लाह तो फिर क्या वजह क्या होगी? उन्होंने कहा वहन, मौत का खौफ, जिंदा रहने की तमन्ना, कोई इज्जत नफ्स का एहसास नहीं है और मैदान हमवार कर रहे हैं। करके देख लें, करके देख लें, कुछ भी नहीं होगा। मुशर्रफ ने कर लिया था ना। मैंने जनाब खुर्शीद कसूरी से कहा हुजूर वाला इम्प्लीमेंट कौन करेगा, मुआहिदा तो हो गया। अच्छा, तो मुआहिदे पे दस्तखत नहीं हुए थे लेकिन तय हो गया था। उन्होंने कहा यही एक सवाल है, ये सवाल जो मैं हमेशा आपसे अर्ज करता हूँ, फैसले आसमानों पे होते हैं। जो लोग इस मुगालते में है ना कि हम इंडिया के थाने, भाई फिर वो आपसे कहेंगे सी पैक वाइंड अप करो, फिर आप कर लेंगे सी पैक वाइंड अप, सवाल ही पैदा नहीं होता। सर्वाइवल ही आपका इसमें है। फिर वो आपसे कहेंगे अपने एटमी असासे जो हैं ये भी ख़त्म करो, जैसे उन्होंने बाद रूसी रियासतों में ख़त्म कराए। तो ये कैसे हो सकता है? आपका सर्वाइवल इसमें है कि आप सुलह करें, मगर उसूलों पे समझौता नहीं हो सकता। अब बात माने टेररिज्म बंद कर दे इंडिया, और कल वो हमला कर रहे हैं, आप दिसंबर से बातचीत कर रहे हैं, और किसको आप बता रहे हैं मुज़ाकरात नहीं हो रहे? कौम को धोखा दे रहे हैं, सारी दुनिया को पता है।